ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु स्वाहा वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा Pushpasparan being done by Rivers Swamijis. शांति हरि ओम तत्सत् स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननी शारदां देवी रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तस्मृत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। सर्जदे सर्यदे सत्य दे चित में प्रेम दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे। सर्जदे सर्जदे शक्ति दे चित में प्रेम दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे। अमृतस्य पुत्र हमें सत्य समझा दे दिल को जगा दे। अमृतस्य पुत्र हमें सत्य समझा दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे। सर्जदे सर्जदे शक्ति दे चित में प्रेम दे दिल को जगा दे। शास्त्र वीर्य दे ब्रह्म तेज दे शास्त्र वीर्य दे ब्रह्म तेज दे। स्वामी विवेकानंद हमें कृपया गंधी स्वामी विवेकानंद हमें कृपया ज्ञान दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे। सर्जदे सर्जदे शक्ति दे चित में प्रेम दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे। अमृतस्य पुत्र हमें सत्य समझा दे दिल को जगा दे। अमृतस्य पुत्र हमें सत्य समझा दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे दिल को जगा दे। सर्जदे सर्जदे
शक्ति दे कितने प्रेम दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। शास्त्र वीर्य दे, ब्रह्म तेज दे, शास्त्र वीर्य दे, ब्रह्म तेज दे। स्वामी विवेकानंद हमें कृपा ज्ञान दे, स्वामी विवेकानंद हमें कृपा ज्ञान दे, दिल को जगा दे, दिल को जगा दे। सर्ज दे, सर्ज दे, शक्ति दे कितने प्रेम दे, दिल को जगा 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 दे। Thank you, sir, for this beautiful song on this occasion. Now, I would like to call Secretary of rkmcbsegwalior Gwalior to welcome Purposeful Srimad Swamijis, who are especially present to inspire all of you. Thank you, Swamiji. Before we start, let me tell you why we have all gathered here. As you know, we are celebrating 125th foundation year of Ramakrishna Mission, and on this occasion we have revered Swamijis with us to guide you, to motivate you, to tell you the right path of getting your or achieving your goals. So without wasting time, first of all, I would like to brief you about our revered Swamiji. Swami Vishwatmananji Maharaj is being inspired by the lives and teachings of Sri Ramakrishna, Holy Mother, Sri Sarada Devi, and Swami Vivekananda. He joined the order at Rajkot Ashram in the year 1968. During this period, he served and conducted various relief works organized by the ashram in Gujarat. He gained experience in almost all departments and publication of Gujarati books. He was then posted at the Ramakrishna Mission School, Narottam Nagar, in Arunachal Pradesh in the year 1978, where he served as the chief warden in the tribal students' hostel for a period of 3 years. He got his sannyas diksha from his diksha guru, most revered Swami Viresh Varananji Maharaj in the year 1979. Later on, from 1981 to 2009, he served at the Ramakrishna Mission Hospital in Itanagar. Hospital in Itanagar is the best and biggest in Arunachal Pradesh, and it is one of the best among the NGO-run hospitals in the northeast region of our country. He served as a secretary of this hospital for 8 years. He was then given the responsibility by the headquarters of Ramakrishna Mission of coordinator in central executive body for 4 years from 2010 to 2014 to monitor all the projects
implemented all over India in commemoration of 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. He was then posted at the Ramakrishna Vedanta Center, Durban, in South Africa, to spread the message of Vedanta and Sri Ramakrishna and also Vivekananda in the year 2014. He served as the president of the center till July 2015. Presently, he is serving as Adhyaksh of Ramakrishna Advait Ashram, Varanasi, to spread the message of Vedanta. So, this was all about revered Swami Vishwanathanji Maharaj. Now, I would kindly request him to show the right path, because this is youth camp and many students, they are gathered here, and we are fortunate to have with you Swamiji, and we want you to tell them some real essence of life so that they can achieve their desired goals without much hiccups. So uh, let me also tell you about Ved Purushananji Maharaj. He joined Ramakrishna Sangha at Belur Math in the year 1988. He served Revered Swami Ranganathananji Maharaj for 10 months. He served in tribal areas of Narayanpur and Itanagar. He remained headmaster of our schools at Purulia and Narayanpur for 10 years. He was also monk in charge of youth and education cells at headquarters for 2.5 years. He is currently secretary of RKM Jharkhand for nearly 4 years. Jharkhand has residential schools for Santali boys and girls. Around 460 students, they are studying there in fully residential schools, and efforts are on to start an English medium school from class 1 to class 12. So, Swamiji, I would kindly request you to. Swamiji's topic would be leading a purposeful and meaningful life, and also in the end, those students who are interested to ask question, they can give me their question as well. बच्चों, आप सभी स्वामी जी को सुनने के बाद में आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप मुझे दे सकते हैं और आप जो है पूछ सकते हैं. मेरा नम्र निवेदन है स्वामी जी से आए, बच्चों का मार्गदर्शन करें. स्वामी जी, थैंक यू. ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः. A very good morning to all of you. First of all, I convey my Sastanga pranams to Revered Swami Vishwatmanandaji Maharaj, a very senior monk of our order. I convey my loving namaskars to the secretary of this ashrama, Swami Shupradiptanandaji Maharaj, for kindly inviting me and giving me an opportunity to speak in front of you. I also convey my love and namaskars to Swami Brahma Yoganandaji and Balapradhanandaji, my brother monks, and my respectful greetings to other invitees, and my love and best wishes to my dear students, boys and girls. So the topic for me is living a meaningful life. Yes, leading a purposeful and a meaningful life. What is the meaning of this term, purpose and meaning? First of all, we shall discuss. I will start with a story. The story is Mullah Nasruddin, whom many of you may know,
Once he was on a leisurely stroll and he came across a junction where four roads meet and diverge. So he was confused which path to take. So few people were there sitting there. So he asked them, "Sir, where does this road leads?" So they told. Then he asked, "Where does this road leads to?" And they told them. So he asked each road, "Where does it go? Where does it go?" Then these people, they were very much little irritated and they asked Mullah Nazaruddin, "Where do you want to go? You first tell me." Then Mullah said, "No, I have nothing specific in my mind, so I'm just asking." Then they told, "If you have nothing specific location to go, then yes. So if you have no specific destination in mind, then every road is okay for you. You can take any path and you can go." So the message here is, if you do not have any goal in life, then your life will be meaningless. You may not reach a destination, you will be just roaming around here and there. You will be wasting your time, your life, and your energies also. So it is very important to fix your goal in life as early as it is possible because it gives a direction to your life. So that is the topic for me. So first is, what is the purpose of life? Purpose means reason for doing something. Without purpose, no one do any action. We always ask why I should do, what will I gain by my action. So our action should have a purpose. We should have a goal. Without that, we cannot direct our energies. We cannot feel motivated. We will. We cannot do justice to our talents. So it is very important that we have some goal in life. Most of us, our actions are guided by our emotions, by our instincts, and by our desires. That is one way of leading your life. Whatever you feel at that moment, you do it. So you want to watch TV, you want to spend time in your mobiles, you spend time without any remorse. But if you have a goal, if you have some target to achieve, then that target will remind you, oh, I have this thing to do. Why I should waste my time in all these things? So having a goal helps us to having our goal helps you to utilize your time in a meaningful manner. And many of the problems which in the modern days people face, young people also face, like boredom, means you don't find joy in your studies. You don't find joy in going to school every day. It is not interesting. Why? Because you do not have any academic goals to achieve. So once you have a set of goals, academic goals to achieve, then you will find a motivation. Then boredom won't come into you. You won't feel bored to sit and study for long hours. Similarly, many of the problems, depression, aggression, addiction that we see in the modern society, they can all be traced to the lack of purpose in our life. It's only those people who do not have any set of goals, they fall prey to all these problems. So it is very important to have a purpose, a goal for your life. That is the first point. Second thing is, what does meaning means? How does purpose and meaning differ? So meaning is the significance of your life, how meaningful it is to others. So you should ask yourself why you live, what you want to achieve in your life, how you want to be remembered by others. And there are some philosophical questions also, where you have come from, where you are going, what is the purpose of life, what is meant to be a good person, what is a good character, what is a good life, how to live a good life, how to be known as a good man and woman. So these are all some
purposeful questions which everyone should ask yourself, that gives you meaning to your life. There was a famous psychologist, Viktor Frankl. So he said, people in modern societies, they have enough to live by, but nothing to live for. They have the means, but no meaning. Once the individual search for meaning is successful, it not only renders him happy but also gives him the capacity to cope with sufferings. Once you have a purpose in your life, you can withstand any sufferings. You can be ready to face any hardship. You will be ready to sacrifice anything for your goal. So that readiness to sacrifice, willingness to face problems, willingness to face sufferings, that comes when your life has a meaning to it. That is why one famous philosopher said, he who has a why to live can bear almost any how. So yesterday our revered Maharaj was talking with us. He told he lived in a very trying, challenging situation at Arunachal Pradesh for more than 3 decades. He said, we added that mentality to face all hardships cheerfully, to take it sportingly, not to get afraid of obstacles, to face the challenges head on. As Swamiji said, face the brutes. So that ability to challenge the challenging circumstances, that you will gain when you have a strong values, when you have a strong meaning, a purpose for living. So that each one of you have to choose. Swami Vivekananda used to say, if a man with an ideal makes 100 mistakes, a man without an ideal makes thousands mistakes. So you should have some goal. And this goal I would like to differentiate between, there are two types of goals. One that is immediate goals, that which has to be met, say tomorrow Monday school starts, you have some assignments, some exams, some tests. So you have to be ready for that. And there are goals which has to be achieved at a month time, at a year's time. And there are some long term, medium term and long term goals at how you want to face in your school leaving examinations, what stream you want to enter, what profession you want to enter, and what, these are all external achievements. So these are necessary. You should have some value, some meaning, some goal to achieve in your external life. Similarly, there parallelly, you should also have some certain set of goals for you internally. What sort of person you want to become, what sort of value systems you want to imbibe, what sort of principles you want to live for. So what type of person you want to be, how are you going to interact with others. So these are all personal goals. So some goals are external and some goals are internal. So each one of many of us, we make this mistake. We focus all our energies on our external goals. I want to get this marks, I want to study this, I want to become an engineer, doctor, I want to earn much, I want to go to states. All are perfectly okay. But along with that, we forget what type of person we want to become. That we don't pay any heed. So Revered Maharaj will guide us on personality development, which focuses on that aspect, our internal aspect of our life. And it is very important we have some very clear set of standards to live for. So when we have a very high ideal for live for, it has its own advantage. What advantage is, when something very high and noble come into our life, all that is low and mean will take flight. Means you have such a very high ideal, you don't have time for all the petty things. You don't have time for gossiping. You don't have time for criticizing others. You don't have time to look what others are doing. You are so much focused on yourself, on you reaching your goal. So your life becomes very rich and very satisfying. And Swami Vivekananda once said, I quote his words, he said, I do not know whether I shall succeed or not, but it is a great thing to take up one ideal, and a grand ideal it must be,
and give up one's whole life to it. For what otherwise is the value of this vegetating little low life of man? Subordinating it to one ideal is the only value that life has. So each one of us, say for example, we monastic members, Swamijis that you see before us, we have one ideal before us which Swamiji has given, Atmano Mokshartam Jagatitaya Cha, for the liberation of oneself and for the welfare of whole world. So that is the purpose, that is the meaning, that is the ideal before us, and all our actions, our thoughts, and we live day and night for realizing this ideal in our life. So, like that, you should also have some goal in life. In that respect, Swami Vivekananda, at the very beginning of Karma Yoga, he said, the goal of mankind is not pleasure, but it is knowledge. It is a very deep statement. It says, pleasure seeking is not the goal of life. Having got a human birth, all of you should not waste it just by just in enjoying some sensory things. The main purpose of life is to acquire knowledge. So that particularly for the students, it is very much necessary. The desire to acquire knowledge must be there. In one of his articles, Swami Vivekananda said, if India has to become great and occupy its rightful place in the world, the love for knowledge should once again come to occupy the central place in the minds of our men and women. A honest, earnest effort to acquire knowledge and the zeal to acquire it should once again come and occupy our centers of higher education. He said something like that. Honest, the zeal for knowledge and love for knowledge, and the honest and the earnest effort to attain that knowledge. Each one of you, you ask yourself the question, do you love your subjects? Do you love studying? Or you do it only for marks, for promotion, for your parents and teachers, for getting some money for job? So if it is there, you correct yourself. You are going to the school, you are going giving exams, you are doing that all not for some marks, not for promotion, but you study to know something. There is some joy in learning. The joy in learning which you have to cultivate. And that Swami Vivekananda used to stress. So the love for knowledge. In this respect, I just want to quote you one famous speech of Steve Jobs. Steve Jobs, you know? Yes or no? Who is Steve Jobs? Yes, many of you know Apple. He is the founder of that Apple company. All these iPhones, iPads, Mac computers, a very innovative person who, even though he was a college dropout, but he fundamentally changed the technological landscape of our world. And today the Apple company has a turnover of more than $3 trillion, which is more than the most of the countries of the world. For example, India is just has some hardly 3.5 trillions. The entire country's output is 3.5 trillion US dollars, but one Apple company is almost 3 trillion. So that person in 2005 he gave a lecture at a graduation speech at Stanford University. It is available in the YouTube, just 15-minute speech. If possible, you go and listen to that. It's a very inspiring speech where he speaks about 3 lessons he learnt in life. And that speech was immediately preceding, he was diagnosed with cancer, a life-threatening cancer which had no cure. And doctors told he had only few more months to live. And at that time he gave this speech. And that speech became very popular. And just a few excerpts from that speech I wanted to tell because it is relevant to the topic which we are discussing. Steve Jobs says, every day I used to stand before the mirror at the beginning of the day and ask myself, if this is the last day of my life, will I do what I am going to do now? If today is my last day, what will I do? Will I do the same things which I am planning to do according to my calendar today, or will I do something else?
Because when we know that this few more hours only we will be in this earth, then we will only try to do that which is more important to us, more valuable to us. Then what is valuable, what is meaningful, it can be determined when from this yardstick, from this standpoint. He says for 3 consecutive days, if I get a no for my answer, no, this is not what I want to do, what is more valuable for me, when this is the last day of my living, then I will think myself of changing it. So then he said a very beautiful passage he told, which is applicable to every student who is here, because he told it to the students only. He said, your time is limited, so don't waste it living someone else's dreams. Don't be trapped by dogmas, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. So, what he says, see, very important. So, do not waste your time in living other people's dreams. You ask yourself, what is your dream? What in what field you are interested? What is your aptitude is there? What you want to study? What you want to spend your time on? What what profession you want to be in? In this, you drown other people's opinion. Let other people may suggest you so many things. Yes, you will consider it, but you will also ask your voice inside what you want to become. So finally, you have to give importance to your own inner intuition and follow your heart. He says, you have got to find what you love. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is a great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. Keep searching for it till you find it. So, very important advice. You have to, in order to do something great and worthwhile, you have to love that thing. So, you have to find a topic, choose a profession in which you feel naturally attracted to. So, because then only your whole life, your profession, everything will become a joyful thing. It won't be a drudgery. You will enjoy doing it. So again, I come back to our monks. So the Swamijis whom you see here, each one of them, they listen to that inner voice. Outside world was telling them something else. You do this, you do this, you do that. But their inner voice was telling them, you take up Tyaga and Seva. You serve the country. So they listened to their inner voice. They forgot the other things, they let it go, and they are living that life. So, because they followed their intuition in their heart, their life is fulfilled, their life is rich, they are able to do excellent work, and not only for them, they are a blessing to the outside world also. So, this is a practical example before you which testifies the truth of this statement. Another important attitude. Attitude is very, very important. Means the mindset which you have. How do you face? The situation is the same for everyone. How you react to that situation is what differentiates one person to another person. Say, all of you may have played cards, the game of cards, or you may know what the card game is. So when people sit together to play cards, initially the cards are randomly distributed to the each player, and we don't have a choice in what type of cards we will get. But having got that, it is your skill, your ability, your tact, and little bit of luck also if you want to come out as winner in that card game. But if you say the moment you get your cards, you say, no, I have not got good cards, I won't play. Those people are quitters, they are losers. So in the life also, we are also given certain cards. So where, in which family we are born, who will be our father, mother, friend, our relatives, our brother and sisters, what will be our look,
what will be our intellectual capacity. So many things which are not, we don't choose it, we are born into it. But having got that, we have to try to make the best use of it. So that is a very important thing. So whatever cards the life has given it to you in terms of family, wealth, health and appearance, etc., be accept it. Don't hate yourself, don't blame others, try to make the best of everything. And in that respect, I tell a very real life story. Many years before, it appeared in the Reader's Digest. I was trying to trace it back. It is a real life story that happened at Dharavi, at Mumbai, a slum, the biggest slum, as they say, in this world. In that slum, there was a small family of father, mother, and two children. And the father was a drunkard, and he was not doing any meaningful work. Every day he used to drink, come back home, beat his mother, beat his wife, beat his children, and shout, quarrel, and go to sleep. And mother somehow used to struggle and brought these two children up. There was a elder son and a younger son, and both of them slowly grew up. And after 30 years, the younger son, he became like his father. Father, in the sense, he took up to drinking, he took up to this abusive life, and he started stealing, and he became a criminal, and he was put in jail. And the elder son, he became a teacher. He took up a job in a school. He moved to a respectable part of the society, and he was living a very honest, dignified life. And the mother, she was living with the elder son who was a teacher. And one day she went to see the younger son who was in the jail. And she asked him, "Your brother is leading such a good life. Why are you like this?" Then the younger son said, "What choice do I have? Before me, my father, all I saw was my father. And he was a drunkard. He was leading a dissolute life. So I just had no option but to become like him. The circumstances forced to make me a criminal out of me." So he was blaming his father, his environment, the circumstances. Then the mother asked the elder son, "My boy, you also grew up in the same environment. Then how come you are like this?" Then the elder son said, "Every day when I see my father coming home and beating you, I used to make a pledge to myself, I won't become like this. When I grow up, I won't be like my father. I will be a respectful person. I won't drink. I won't have any vices in me. I will treat my family with love and care." So this, my father gave me an inspiration what I should not be and what I should become. So here the main important is, it is does not matter what happens to us. It only matters what meaning we give to what happens to us. It is what shapes our life. We can live in anger and bitterness and point out to everything that is wrong with the world, and we don't, it is very easy to put the blame on others for our own failures. But Swamiji said, take the whole responsibility on your own shoulders. So the responsibility to build your life is on yourself. It is rest squarely on your shoulders. You are responsible for what you want to become. The choices that you make now are going to decide what you are going to be in the future. So every moment of your life, you should be very careful in choosing, making the right choice, making the right type of friends, and spending your time very wisely. It is very important because you won't get another chance for this. You live only once. You don't get another chance. In that respect, there is a very beautiful poem by Mother Teresa.
most of us, when we want to live a purposeful and meaningful life, when we look around, we see people who are doing bad things, who are not having strong moral principles, and we ask ourselves, if they can be bad and still be successful, why I should be good and struggle? Because to be good is not easy. To live up for your values is not easy. It invites struggle. You must be ready to face sacrifice, ready to struggle, to live up to some ideal. Greater the ideal, greater will be the sacrifice you will be called to give. So there is a beautiful prayer, a poem written by Mother Teresa. Its sentiments are very noble. Just I read it out. Just follow me closely. The people are often unreasonable, irrational, and self centered. Forgive them anyway. If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives, but be kind anyway. If you are successful, you will win some unfaithful friends and some genuine enemies, but succeed anyway. If you are honest and sincere, people may deceive you, but be honest and sincere anyway. What you spend years creating, others could destroy overnight, but create anyway. If you find serenity and happiness, some may be jealous, but be happy anyway. The good you do today will often be forgotten, but do good anyway. Give the best you have, and it will never be enough, but give your best anyway. In the final analysis, it is between you and God. It was never between you and them anyway. So the main thing is, it is only what matters to you. It is not dependent on others. So the real secret in building a honest life, a successful life, is you do it for yourself. You have a set of standards which are your assets. You are truthful, you are honest, you are punctual, you are caring, you are sharing, you are selfless. It's not because others are like that, others want you to do it. It is not always for the sake of others, it is for yourself. It is not for show. So try to be authentic. So my time is up. So that's what I wanted to stress today. The attitudes, your attitude, the choice you make today is going to build your life for future, and you are not going to have a second chance at it. Confucius once said, he said, we have two lives. Confucius said, and all of you might wonder, how does it be? I am born once and I will die once. And I live between birth and death, there is only one life. But Confucius says no. Each one of us, we have two lives. What is that? Then he explains, the second life begins when you realize you have only one. So we have two lives, but the second life begins when you realize you have only one. Many of us, we don't realize it. Only when you have crossed the school and get into college, you realize, oh, I wasted my time at school. If only I could have spent it wisely, then I would have been in some other place. But now you cannot do. So we have only one life, and we have to live that life consciously, purposefully, for some ideals, so that we leave a mark on this world and let people remember us for the good things we are doing. So I am finished with that, and thank you very much for a patient hearing. Now I have few questions, two questions. Swamiji, please tell how to achieve goal in your life. How to achieve goal in your life? Oh, excellent. ना महाराज যাচ্ছেন তো এখন এই মহারাজ এই মানুষ মহারাজ তো চলে যাচ্ছেন দুটো কোশ্চেন শেষ করব there are till Maharaj comes, let me answer your question. How to achieve one's goal in life? Swami Vivekananda said, to achieve one's goal in life,
The first thing you have to do is to fix a goal. And then he said, how to achieve that goal? What are the steps I have to do? What are the means for achieving that goal? That you have to determine. Say if your goal is to get 80% in your examination, then you have to break it up into parts. So what are the subjects in which I get more than 80% and what are the subjects in which I am weak? So you have to focus on the subjects which you are weak and try to improve it so that your average is 80%. So in general, you have a and you will find out, you will discuss with others, you will take the help of your elders and how to achieve that goal. You will fix that means. And then Swamiji says, you forget your goal now. You focus all your efforts, you focus all your energy on the means, on the way to attain that goal. And if your energy, if your efforts are sincere, if it is 100%, then the goal is out to come. You will reach that place. So a simple answer to this question is focus all your efforts on the means to achieve that end. And many times we feel that pressure, tension because we focus too much on the result and we become very nervous. What if I don't get that? But rather you try to focus on the means. There is something in Hindi. No, read it just. स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न यह है कि मैं अपने जीवन में कैसे आसानी से सफल हो सकूं। कैसे? How to be successful in life. So first thing is you have to define what success is. What you mean by success? जीवन का सफलता माने की? What does it mean? Is it just material goods? If I get 1 lakh salary, will I call myself successful? If I have some cars, if I have some vehicles, if I can go for long tours, vacation, if I am successful. So that is materialistic definition of success. And we tell, yes, that also is necessary. But what type of person you are? If you ignore that, say you are very successful, but you are not at peace with yourself. You are other people, they don't love you. They are afraid of you. You abuse other people. You shout. Then in your definition of success is not complete. So initially I told you we should have two goals. We should have external goals, yes, which define success in the normal sense, a good career, a good profession, good financial security, a good life, a comfortable life. That is called in Sanskrit Abhyudaya. And we should have Nishrayasa also. Means a successful person is a one who is at peace with himself, who knows who he is perfectly, who knows his strength and his weakness, and who is a blessing to others. Swami Ranganathananji Maharaj, he gave a small definition of what success is in spiritual context, but it applies everywhere. He says, if you are really spiritual, you will feel the oneness with others. You will feel peace within yourself and you will radiate that peace within others. So your success should also have this component within you, that your success is also leading to the success of others around you also. It's not that you rise at the cost of others, but your success also helps in the success of other people around you. So this larger perspective we should also always have. Success not at the cost of others, but success along taking everyone along with me. And the peace and happiness within yourself. At the end of the day, are you happy? There are many millionaires who have crores and crores of rupees, but they are not happy. Finally, why you want to be
gain money, why you want to have everything, it is for happiness. We all search for happiness. But where that happiness is, we don't know. We think happiness is there in such and such thing. But the real happiness, the source of that happiness is within ourselves. So the real success is when you know the source of the happiness within you, when you know yourself. So we should try to be successful in both these aspects. Thank you very much. We'll have Maharaj's speech now. So, question is also there. स्वामी जी प्रणाम। मेरा प्रश्न यह है, कठिन समय में अपना उत्साह कैसे बनाए रखें? Yeah. No, कठिन समय में अपना उत्साह. No, your question, tell me. कठिन समय में? Maharaj ji, she wants to ask, in adverse circumstances, how can we make ourselves keep on going? Never give up. This Not is the anger. question. कठिन समय में? Enthusiasm. We have to maintain enthusiasm in हाँ. adverse circumstances. Please. हमारा उत्साह कैसे बनाए रखें? That she asked. So how to? Yes. So, when there are two things, when the going gets tough, the tough gets going. Huh? Do you get me? There is a saying in English, when the going gets tough, the tough gets going. When the situations are very not conducive, when it is very detrimental, very adverse, then only the real character of a person comes through. In good circumstances, everyone is good. But only in adverse circumstances, you will know the real character of man. So they bring out what you really are. They show the mirror to you. Adverse circumstances, they show the mirror to you, who you are, really are. And others also can know what you really are. So that is a blessing. If you take it in a positive manner, it is a blessing that adverse circumstances highlight your strength and highlight your weakness in a very magnified manner. And it will help you an opportunity to improve yourself, strengthen yourself. Yesterday Maharaj was telling, a gold, how do you refine the gold? How do you refine the gold? It is only by putting it under the fire. Agun, only when you refine it in fire, then only the gold, all the impurities are removed and the gold gets purified. Similarly, in order to become, these adverse circumstances makes you strong, makes you face the difficulties. And as Swamiji said, face the brutes. Running away from your problems will only increase your problems. It is not going to solve it, because you cannot get away from it. At some point of time it will catch you. So running away from problems, avoiding the problems is not a solution to the problem. Rather, you face it head on. And do not, in that thing, try till you succeed. You may not succeed at the first attempt, but do not give up your efforts. As long as you are trying, there is no defeat. As there is saying goes, the cowards never start, losers never finish, and winners never quit. The cowards never start. They see a thing, they say, oh, it is so tough, it is beyond my capacity, I won't do it at all. They quit at the beginning itself. Cowards, they never start. And losers, they never finish. They progress for some time, a little bit of difficulty comes, they say, oh no, it is beyond my capacity. They quit. So the cowards never start, losers never finish, but winners never quit. Winners also face the same problems, but they never quit. They keep on trying till they achieve success. So that is one characteristic of success, resilience.
Resilience is the ability to withstand setbacks, problems, adverse circumstances, not to get bowed down by it and overcome it. So the successful leaders, they have this quality of resilience. Resilience means they don't break. They may bend, but they don't break. They will prevail upon adverse circumstances. So in our life also many adverse circumstances we have come. The really successful person, he will be resilient to all these setbacks, mishaps, failures. You won't get bowed down by it. Failures are the stepping stone to success. So he makes it and proceeds. Thank you. I don't want to take much time because we are waiting to hear the valuable words of our Revered Maharaj. Thank you, Swamiji, for your inspirational talks. I hope students sitting over here, when they go home, they will remember Swamiji's words. Cowards never start, losers never finish, and winners never quit. Great. Now, I would like to request Revered Swami Vishwanathan Maharaj to tell students about personality development. Swamiji, please. मैं एडजस्ट कर लूंगा अपना सा नमः श्री अतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. My dear monastic brothers on the stage and in front of me, dear teachers and my dear students, till now we heard a beautiful lectures from Swami Veda Purushananda Maharaj. Though you are all learning in English medium school, but understanding subject when teacher is writing on board and speaking some words and reading your own book, it may not be so difficult to understand the subject. But when this type of discourse is there, I think you should think over, and should I speak in English or Hindi? Raise hand. English, Hindi. I shall speak in mixed language, both the languages. I think in the front rank they do not understand much, but the boys behind class 9, 10, 11, they may understand fully. My subject is personality development. Now, first thing, I don't know how much you are acquainted with the meaning of personality. Can anybody say what is personality? Please tell. Anybody can say what is person? What do you understand by the word personality?
दूसरा हिंदी में शब्द है व्यक्तित्व। क्या समझते हैं जी? व्यक्तित्व और पर्सनालिटी बोलने से शायद कभी ये चांस इस तरह का सब्जेक्ट सुनने को नहीं मिला, इसलिए मीनिंग इतना क्लियर नहीं है। हैजी मीनिंग यू माइट बी हैविंग। व्यक्ति मने व्यक्ति, एक पर्सन, पर्सनालिटी मने पर्सन। But today we are going to discuss about the subject of personality, which in Hindi it is called Vyaktitva. And since you are students, so better to know the meaning of the word also, which we are going to discuss. Personality word is an English word, of course, and root is in Latin word. In Latin, original word is persona. Persona means mask. और जब डांस करते हैं और ड्रामा करते हैं, और पुराना जमाने में मास्क लगाते थे ना, ड्रामा करेगा तो राजा का मास्क लगाएगा, बाघ का लगाएगा, रानी का लगाएगा, ऐसे विभिन्न तरह के मास्क लगाते थे। पर्सोना मने मास्क। उस मास्क का ड्रामा जो कर रहा है वह पर्सन, माने राजा का मास्क पहना है तो ये राजा पर्सन हो गया। इसके ऊपर से व्यक्तित्व के लिए पर्सनालिटी शब्द आ गया। पर्सनालिटी मीन्स व्हाट यू अपीयर। दूसरों के सामने जब जाएगा तो तुम्हारा प्रभाव कैसे पड़ेगा, तुम्हारा हाइट कितना है, तुम्हारा सौंदर्य कितना है, तुम्हारा कपड़ा कैसे पहना है, तुम कैसे खड़ा है, तुम किस ढंग से बात करता है, तुम्हारा एटिकेट क्या है, ये जो मैनरिज्म क्या है, व्यवहार कैसे करता है, बातचीत को, सब्जेक्ट को कितना समझता है, दूसरों के साथ में तुम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है, इस सब का जो एक प्रभावित पर्सनालिटी, तुम जब कोई ग्रुप में जाओ, मीटिंग में जाओ, मित्रों में जाओ, जहां कहीं भी जाओ, पर्सनालिटी काउंट्स। इफ पर्सनालिटी इज वेरी पुअर, ही विल नॉट एबल टू इंप्रेस एनीबॉडी। मगर ये है इंग्लिश वर्ड, और इसका जो मीनिंग होता है, शाब्दिक मीनिंग, इज ए वेरी सुपरफ्लुअस वर्ड। मास्क, मास्क थे के पर्सन, और पर्सोना और पर्सोना थे से पर्सनालिटी शब्द बना है। अमेरिका में और बहुत से वेस्टर्न कंट्री में और इंडिया में भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्सेज चलता है, और हजारों रुपया चार्ज लेते हैं उसका, क्योंकि जीवन में मात्र शिक्षा ही यथेष्ट नहीं है, इनफ नहीं है। हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन सोसाइटी, हाउ यू आर एबल टू इम्प्रेस अदर पीपल बाय योर होल पर्सनालिटी, इट काउंट्स। बट इन वेस्टर्न कंट्री and even many Indian personality course also, main emphasis is on mannerism, occasional dress, how to talk, how to behave, etc. They are teaching, and sometimes they teach deeper thing also. अभी उसका हिंदी अर्थ है व्यक्तित्व। तो सबने सुना होगा, व्यक्तित्व शब्द तो सुना है, हाथ ऊंचा करो, किसने व्यक्तित्व शब्द सुना है? व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? वही जो तुम है और बाहर में दिखाई देता है, मगर उसका गहरा अर्थ क्या है? व्यक्त में से व्यक्तित्व बन रहा है। मास्क से पर्सोना, पर्सोना से पर्सनालिटी शब्द बना है। मास्क मने ही ऊपर ऊपर से आ गया। व्यक्त मने किसको बोलते हैं? व्यक्त जो छुपा हुआ था उसको उगाड़ दिया, अंदर से बाहर निकला। बीज था जमीन में बो दिया, पानी, प्रकाश, हवा मिला, और वहां से व्यक्त हुआ, वो वृक्ष बना। ऐसे मनुष्य का बीज हमारे अंदर में है। मनुष्य बने नहीं है, बीज पड़ा है।
उस बीज को एनवायरनमेंट देना है, हवा, पानी, खाद, सूर्य प्रकाश, ये सब उनको देना है। तब हमारे अंदर में जो पोटेंशियलिटी है, उस पोटेंशियलिटी को बाहर करके एक पावरफुल व्यक्ति बनाना, जैसे विवेकानंद है, जैसे सुभाष है, जैसे बुद्ध है, जैसे गांधी जी है, जैसे नरेंद्र मोदी है तुम्हारा सामने। ऐसा एक अंदर से प्रस्फुटित होकर के बाहर व्यक्त होना, उसको व्यक्तित्व बोलते हैं। पर्सनालिटी से व्यक्तित्व के अंदर में बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। और हम लोग यहां जो बात करेंगे, ये व्यक्तित्व विकास की बात करेंगे, जिसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अभी व्यक्तित्व विकास माने अंदर में छुपी हुई तुम्हारी जो संभावनाएं है, पोटेंशियलिटी है, इस पोटेंशियलिटी को, उस क्षमता को, अंदर में जो संभावना पड़ी हुई है तुम्हारे अंदर में, उस संभावनाओं को बाहर करके एक एबल परफेक्ट मनुष्य बनाना, ये व्यक्तित्व विकास है। उस व्यक्तित्व विकास के बहुत डायमेंशन है, क्योंकि हमारे जीवन के अंदर में बहुत डायमेंशन, बहुत आयाम है। उस बहुत आयाम को विद्वान लोगों ने 4 भाग में डिवाइड कर दिया। इसका पिरामिड जैसा है। तुम्हारे पास में कागज होने से अच्छा था तो उसमें पिरामिड बना सकते थे, मगर कल्पना करो एक पिरामिड, कल्पना कर सकता है? पिरामिड माने ऐसे होता है ना, और बेस होता है। उस पिरामिड का कल्पना से 4 भाग कर लो। इसमें सबसे नीचे है PQ, याद रखो, सबसे नीचे है PQ, ग्राउंड लेवल, जिसके ऊपर में फिर सब खड़ा होता है। इसके बाद में दूसरा है IQ, तीसरा है EQ और चौथा है SQ। ये जीवन विकास के विभिन्न आयाम अथवा सीढ़ी बोल सकते हैं, जहां व्यक्तित्व प्रस्फुटित होता है, विकसित होता है। तो तुम एक परफेक्ट मनुष्य बनने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? तुम बीमार है, रुग्ण है, कोई दम नहीं है, चेहरा में तेज नहीं है, चलने में जोर नहीं है, बात भी पे 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 करके करता है, ऐसा जो है वह PQ, फिजिकल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपना PQ को ठीक करना है, फिजिकल इंटेंशन, एबिलिटी, स्वास्थ्य योगा से होता है, एक्सरसाइज से होता है, नरिशिंग फूड से होता है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो तुम आगे का कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए विवेकानंद बोलते थे, तो गीता पढ़ने के पहले तुम फुटबॉल खेलना सीखो, तब शरीर के अंदर में थोड़ा जोर आएगा, और जिसके शरीर में वो सब में डिफरेंस होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। और जो ऐसा प्रभावी व्यक्ति है वही सब जगह में सफल होता है। किताबें विवेकानंद, रामकृष्ण और ऐसे बड़े लोगों की किताबें पढ़ने से थिंकिंग पावर बढ़ता है, समझने का पावर बढ़ता है, जीवन से जूझने की शक्ति आती है। तो ये है इंटेलिजेंस क्वोशंट, सेकंड लेवल। थर्ड लेवल क्या बोला था, याद है किसी को? बोलो। EQ, थर्ड लेवल EQ, फर्स्ट लेवल PQ, फिजिकल क्वोशंट, सेकंड लेवल इंटेलिजेंस क्वोशंट, थर्ड लेवल है EQ। सुना है वर्ड कभी EQ? कोई सुना है? EQ, E माने इमोशन, क्वोशंट माने इमोशनल पावर, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। इमोशन क्या है हमारा? आत्मश्रद्धा,
दूसरों के प्रति प्रेम, ये साहस, स्ट्रेस, जीवन में जब समस्या आती है तो उसके सामने जूझने का जो मनोबल, हृदय का बल, दृढ़ता, कोई एक काम हाथ में लिया तो उसको पकड़ के पूरा करके सफल करके ही छोड़ूंगा, ये जो हृदय की भावनाओं की, इमोशन का जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी का ट्रेनिंग, उस क्वालिटी जिसके अंदर है, तुम फिजिकली बलवान बन गया, सुंदर बन गया, इंटेलिजेंट भी बन गया, बड़ा गवर्नमेंट पोस्ट मिल गया, मगर अगर तुम्हारा EQ वीक है, तुम जीवन की समस्याओं से जूझ नहीं सकता है। थोड़ा सा झगड़ा किसी के साथ में हुआ, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने निगलेक्ट कर दिया और अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। कोई ऐसा सिचुएशन आएगा जिस सिचुएशन को सामना करने का साहस नहीं है। घर में झगड़ा होता है, वाइफ से झगड़ा होता है, बच्चों से झगड़ा होता है, और जो मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। जहां नौकरी करते हैं उस नौकरी का अगर प्रोजेक्ट दिया हुआ है, किसी को MBA किया है और एक प्रोजेक्ट दिया है, पूरा करना है, और उससे जूझने का मनोबल नहीं है और करने में डिफिकल्टी होती है, थक जाएगा, घर में आएगा, फिर स्ट्रेस होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर डिप्रेशन होगा, और फिर लगेगा ये जीवन में क्या सार है, इससे तो मर जाना अच्छा है। और बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इसलिए तुम्हारा फिजिकल पावर ज्यादा है, इंटेलिजेंट भी तुम बहुत हो, मगर इमोशनली अगर स्ट्रांग नहीं हो, यू विल कोलैप्स इन योर लाइफ। इमोशनली पावरफुल होने के लिए सत्संग करना है, महापुरुषों का जीवन पढ़ना है, सच्चिंतन करना है। बहुत से हैं, इतना ज्यादा तो हम डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, मगर इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्ट्रेंथ और इमोशनल पावर ये जीवन में बहुत महत्व का है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? जीवन बनाने के लिए, जीवन गढ़ने के लिए, व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, व्यक्तित्व बिल्डिंग का करने के लिए फिजिकल, इंटेलिजेंट, इमोशनल एंड लास्ट SQ। कोई बोल सकता है SQ क्या क्या अर्थ है? टीचर्स भी बोल सकते हैं। XQ का माने क्या? व्हाट इज SQ? स्पिरिचुअल क्वेश्चन। जैसे फिजिकल स्ट्रेंथ होता है, इमोशनल स्ट्रेंथ होता है, इंटेलिजेंट स्ट्रेंथ होता है, आत्मबल, ईश्वर श्रद्धा का बल, वो स्पिरिचुअल क्वेश्चन बोलते हैं। स्पिरिचुअल क्वेश्चन कैसे आएगा? आज जिसका स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो गया, आज जो आत्मा अभिमुखी हो गया, आज जो आत्मा से जागृत है कि हु एम आई, ये प्रश्न जगेगा स्पिरिचुअल क्वेश्चन में। मैं कौन हूं? ये शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, क्योंकि ये तो परिवर्तन होता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं, आत्मा सर्वव्यापी है, सब पावरफुल है। ऑल पावर्स आर सेंटर्ड इन आत्मन। उस आत्मा को जानना, उसके जीवन में संपूर्ण समता आ जाएगी, एक अद्भुत शक्ति आ जाएगी, एक विश्व व्यापकता उसके अंदर में आ जाएगी। एंड ही विल बी ए डिफरेंट मैन लाइक गॉड। ये भगवान के जैसा हो जाएगा। मनुष्य विकास की जो चरम सर्वोच्च अवस्था है वो स्पिरिचुअल अवस्था है, जिसको श्री रामकृष्ण बार बार बोलते हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति। जिसको स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑलरेडी इन मैन। हमारे अंदर में जो डिवाइनिटी है, उस डिवाइनिटी को जानना ही ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, जिसको शैक्षणिक भाषा में, एजुकेशनल लैंग्वेज में स्वामी विवेकानंद ने बोला था, ये तो तुम अपना स्कूल में जरूर सुना होगा, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन, आगे बोलो,
किसने सुना है? रामकृष्ण मिशन के स्कूल में तो सुना ही होना चाहिए। टीचर्स, एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा क्या है? मनुष्य के अंदर में पहले से ही निहित जो परफेक्शन है, पूर्णता है, उसको मैनिफेस्ट करना, व्यक्त करना, बाहर में आविर्भाव करना, फिजिकल लेवल में, इंटेलिजेंट लेवल में, इमोशन लेवल में, आत्मिक लेवल में। ऐसा जब पूरा करेगा, जीवन के अंदर में शिक्षा पाएगा, यू विल बी ए मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। ऐसा मोस्ट सक्सेसफुल वर्ड इतिहास में तो बहुत हो गया, इसका लिस्ट का कोई एंड नहीं है। तुम्हारा सामने, तुम्हारे नजर के सामने जो देखता है, तुम कौन है बता सकता? भारत में नरेंद्र मोदी, जिसमें ये चारों क्वेश्चन काम करता है। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, इंटेलिजेंस भी बहुत है, इमोशन भी, प्रेम पूरा जगत और पूरे भारत और पूरी मानव जाति के लिए, और वह ईश्वर में श्रद्धा रखता है, वह आत्मा का चिंतन करता है। ऐसा व्यक्ति, उसको प्रेरणा कहां से मिली? स्वामी विवेकानंद से। स्वामी विवेकानंद, उनके आदर से हमारे एक स्वामी जी गए थे उनको मिलने, तब वह चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में। वो स्वामी जी पहले से ही जानते थे। तो उनको वो पूछा, नरेंद्र भाई, तो आप इतने व्यस्त रहते हैं, इतने पॉलिटिकल स्ट्रेस, सब जगह से बदनामी का कितना हवा दुनिया भर में चल रहा है, आप निर्विकार, समतावन, कोई स्ट्रेस नहीं है, रिलैक्स होकर के पूरे बल के साथ में ये पूरा देश, गुजरात राज्य को आप संभाल रहे हैं और विकास हो रहा है, विकसित गुजरात, ये कैसे हो रहा है? स्वामी विवेकानंद का पिक्चर उनके पीछे था। उसने स्वामी जी को बोला, पीछे पिक्चर देखते हैं, ये मेरा प्रेरणा का स्रोत है, मेरा जीवन का आदर्श है, मेरी सब शक्ति वहां से आती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, और स्वामी विवेकानंद को पढ़ते पढ़ते ये चारों क्वेश्चन अब तुम्हारे अंदर में डेवलप होने लगेंगे, एंड जीवन का एक न्यू डायमेंशन खुल जाएगा, न्यू होराइजन खुल जाएगा, नया आयाम खुल जाएगा, एंड यू विल बी ए सक्सेसफुल, इफेक्टिव, इंप्रेसिव पर्सनालिटी, जो जहां भी जाएगा सफलता उसके पीछे पीछे चलेगी। जीवन में तो हम सफलता चाहते हैं ना, अगर व्यक्तित्व नहीं है, अगर पर्सनालिटी नहीं है, जैसे हम बोला, कहां से सफलता आएगी? अगर जीवन में सफलता चाहते हो तो इस ढंग का व्यक्तित्व को विकास करो, फिर जगत में कोई तुमको कहीं भी नहीं रोक सकता। धन हो तो भी सफल, धन न हो और वैरागी बन के पहाड़ में, जंगल में गया है, वहां भी तुम व्यक्तित्व रूप में एक सफल व्यक्ति होगा। जीवन में सफलता मात्र पैसा से ही नहीं होती, पोस्ट से ही नहीं होती है, परिवार से ही नहीं होती है, आत्मविकास से सफलता होती है। और ये संपूर्ण टोटल आत्मविकास, ये पर्सनालिटी विकास का स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को समझ लो और अपना जीवन को उस हिसाब से गढ़ना चालू करो, तुम्हारा जीवन एक नया ही बन जाएगा। तुम्हारे अनंत शक्ति है तुम्हारे अंदर में, उसको कैसे प्रकट करना, ये हम लोगों को स्वामी विवेकानंद सिखाते हैं। एक कहानी बोलूंगा जो स्वामी जी ने बोली है, शायद सुनी भी होगी क्योंकि तुम्हारे में से बहुत से रामकृष्ण मिशन के स्टूडेंट है। एक जंगल था, वहां एक चरवाहा रहता था, उसकी बहुत सी भेड़ें थी और रोज भेड़े को लेकर के जंगल में जाता और बांसुरी बजाता बैठता और भेड़ें चलती रहती है।
एक दिन अचानक कहीं से एक शेरनी आ गई शिकार के शोध में। और देखिए बहुत से भेड़े हैं तो गर्जना करती हुई आई और जंप दे करके एक भेड़ा को पकड़ने गई। वहां छोटा सा नाला जा रहा था, तो भेड़ा दौड़ते दौड़ते मलाख पार करके, पानी नहीं था, थोड़ा सा पानी था जिसमें ये लोग पानी भी पीते थे भेड़े। अभी वो बाघिन गर्भिणी थी, डिलीवरी होने का टाइम हो गया था, और जंप करने से जो जोर का स्ट्रेस पड़ा उसका एब्डोमेन के ऊपर में, गर्भपात हो गया और बच्चा पानी में गिर गया। और गर्भपात हुआ और एक्सट्रीम ब्लीडिंग होते होते उस तरफ में बाघिनी गिरी और मर गई। तो जो चरवाहा आया, बच्चा बाघ का पानी से उठा लिया। बच्चा हमेशा प्यारा होता है, फिर वो बाघ का हो या छागल का हो या मनुष्य का हो, क्योंकि वहां इनोसेंसी है, वहां अहंकार है नहीं है, वहां प्योरिटी है, बच्चे प्यारे होते हैं। उसने बाघ के बच्चे को रख लिया और बाघ का बच्चा को, जो भेड़े है, भेड़े का दूध बच्चा पीने लगा, उसके बाट से ही दूध चूसने लगा। धीरे 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 बड़ा होने लगा। वो समझ नहीं लगा कि मैं भी भेड़ा हूं, और ये भेड़े मेरी माँ है, और भेड़े भैं 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 करते थे तो ये भी भैं भैं करना सीखे। गर्जना मालूम ही नहीं गर्जना क्या है। ऐसे करते करते बाघ तो बड़ा फुल साइज हो गया, मगर वो भेड़े के साथ में ही घूमता है और घास खाता है, घास खाना सीख लिया। एक दिन रियल दूसरा बाघ आ गया और वो छुप करके देख रहा है, क्योंकि बाघ शिकार में जाने के आगे छुप जाता है कहीं। तो देखा इतनी बेड़ा के अंदर में एक बाघ भी घूम रहा है। फिर उसने थोड़ा नजर करके देखे तो घास भी खाता है और कभी भैं 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 आवाज भी करता है। वो जंप मारा, कोई भेड़ा को नहीं पकड़ा, बाघ को ही पकड़ा। बाघ को पकड़ के दूर लेकर गए, तुम क्यों ये भेड़ों के साथ में क्यों रहता है? तो बाघ की भाषा नहीं से तो भैं 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 करने लगा। बोले ना, तुम भेड़ा नहीं है, तुम तो बाघ है। ना ना ना, भैं 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 मैं भेड़ा ही हूं। अरे तुम घास खाता है इसलिए भूल ही गया है जो तुम भेड़ा नहीं है, तुम तो बाघ है। चलो मेरे साथ में। वही नदी के पास में ले गया, उसमें मुख देखो अपना। उसने मुख देखा और फिर दूसरा बाघ का भी मुख देखा, है तो मेरे जैसा है। फिर एक भेड़ा को मार के उसको मांस खिलाया। वो तो कभी जीवन में मांस नहीं खाया था, भेड़ा के साथ रहने वाला। मांस खाया तो, क्योंकि स्वभाव से तो बाघ है ना, मांस बहुत अच्छा लगा। फिर बोला अभी गर्जना करो हमारी तरह से। बाघ ने जब गर्जना की, बाघ की रोरिंग साउंड, बोला अब तुम भी ऐसा करो। और वो भी रोरिंग साउंड की। तब उनको मालूम कि मैं तो बाघ हूं, और भेड़ा को छोड़ के जंगल में चला गया, क्योंकि वो बाघ ही था तो बाघ हो गया। तब उसको अपनी अनंत कितनी विशाल शक्ति थी, वो शक्ति का भी मालूम हो गया। विवेकानंद बोलते हैं ये प्रत्येक मनुष्य अपने को सामान्य जीवात्मा समझता, माने भेड़ा समझता है। प्रत्येक मनुष्य अपने को भेड़ा समझता है, क्योंकि वो समझता है मैं सामान्य जीव हूं। तुम सामान्य जीव नहीं, तुम तो सर्वशक्तिमान परमात्मा हो। ऐसे विवेकानंद, रामकृष्ण, राम और कृष्ण जैसे कोई अवतारी पुरुष आएंगे और बोलेंगे नहीं तुम भेड़ा नहीं है, तो पकड़ेगा तुमको और मांस खिलाएगा। तब मालूम पड़ेगा जी मैं तो मनुष्य नहीं, सामान्य जीव नहीं, मैं तो आत्मा हूं। वो मांस माने क्या? आत्मज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, ध्यान, जप, ये मांस खिलाएगा। और तब मालूम पड़ेगा अंदर से जान के, ओ अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, अनंत शक्ति का प्राकट्य हो जाएगा उसके अंदर में। और वो सामान्य मनुष्य नहीं रहेगा, वो महान से महानतम बन जाएगा और भगवान बन जाएगा। यही स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। ये चारों क्वेश्चन हमारे जीवन में आना है। इसको ठीक से, ये महाराज ने रिकॉर्डिंग कर लिया है, रिकॉर्डिंग फिर से सुन लेना और याद कर लेना। हमको क्या बनना है?
ऑफिसर बनेगा, आईपीएस बनेगा, मैं तुम लोग के पास में वहां गया था, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, वो तो बनना ही है। मुझको भगवान बनना है, आत्मा को जानना है, तब मेरा जीवन सफल होगा। तो आज इतना ही। यहां कुछ लिख के दिया है। तो ये पहला प्रश्न है, जो जिसने बोला है वो याद है, वो खड़ा। व्हाट वी कैन अचीव बाय PWD GWD महाराज जी, what we can achieve by good personality? GWD क्या है? IQ है, PQ है, EQ है, SQ है, मगर GWD पर्सनालिटी क्या है? विशाल। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न था कि अपने जीवन में अच्छी पर्सनैलिटी का क्या तात्पर्य है? अपने जीवन में अच्छी पर्सनैलिटी का क्या तात्पर्य है? अपने जीवन में ऐसी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें? हाँ। सिग्निफिकेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इन आवर लाइफ। जी महाराज जी, यस। जीवन में सफल होना। जीवन में सफल कैसे होगा? प्रभावी होने से। प्रभाव कैसे आएगा? फिजिकल, यू आर फिट, इंटेलिजेंट, लविंग एंड स्पिरिचुअल। ये जब होगा, तुम जहां भी जाएगा उसका प्रभाव होगा, और वही उसकी सिग्निफिकेंस। थैंक यू महाराज जी। नेक्स्ट है, इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर लुकिंग गुड ओनली? लुकिंग गुड ओनली, ये तो मैं जब PQ समझा रहा था उस समय में बोला था। कौन था ये? कौन है? बोलो तो। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट जी लुकिंग गुड ओनली? गुड ओनली। हाँ, ये तुम्हारा प्रश्न है। ये तो ट्यूटर होने से उसका तो नकल हो जाएगा। उसका पर्सनालिटी अच्छा दिखने से होता है क्या स्वामी जी? पर्सनालिटी अच्छा दिखने से होता है? अंदर से प्रश्न आने दो। डोंट टीच प्रश्न, लेट इट कम आउट फ्रॉम देम। अच्छा, अभी थर्ड। अच्छा, वो तो उसका आंसर हिंदी में ही बोल दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका? शिवेश ने की। महाराज जी, हमारे जीवन में पूजा क्यों करनी चाहिए? वाई शुड वी वर्शिप गॉड? इंग्लिश में यहां लिखा मिलता। पूजा क्यों करनी है? भगवान से सानिध्य बनाने के लिए। क्योंकि भगवान का कोई आकार नहीं है, असल में भगवान निराकार है, मगर हमारे लिए भगवान आकार लेते हैं। राम बनते हैं, कृष्ण बनते हैं, शिव बनते हैं। फिर उनसे संबंध स्थापित करना है तो कैसे करना है? अगर तुम आंख बंद करो और अपने मन में शिव की कल्पना, राम की कल्पना, रामकृष्ण की कल्पना करो तो बहुत अच्छा है, मगर वो बहुत डिफिकल्ट है। तो मंदिर में जाएगा, श्रद्धा से जाएगा, प्रेम से जाएगा,
फूल लेके जाएगा, फल लेके जाएगा, सामने बैठेगा, पुजारी जैसे पूजा करते हैं, और पूरी पूजा मानो कि तुम पुजारी है और पूरी पूजा कर रहा है, तो उतना समय तुम्हारा मन भगवान से लगा रहेगा। और जब मन भगवान से लगा रहेगा तो जिसके साथ में तुम्हारा मन लगा रहेगा उसकी तुम शक्ति पाएगा। श्री रामकृष्ण बोलते हैं, जार चिंता कोरबे तुम्हें तार शक्ति पावे। माने तुम जिसकी चिंता करेगा उसकी शक्ति पाएगा। तुम राम की चिंता करो, राम की चेतना आएगी तुम्हारे में। शिव की चिंता करो, शिव की चेतना आएगी। श्री रामकृष्ण की, स्वामी विवेकानंद की, मां शारदा की पूजा करो, उनकी चेतना तुम्हारे अंदर में आएगी। तो पूजा करने का भी अपना फल है। नेक्स्ट, फाइव, राजुल। व्यक्तित्व विकास क्यों है और इसका महत्व क्या है? इंग्लिश में यहां है, तुम क्या बोला मैं नहीं समझा, मगर यहां जो लिखा है, हाउ कैन वी ओवरकम फियर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन में भय को कैसे हटाना। स्वामी जी कहानी शायद बोला था ना, फेस द ब्रूट। क्या स्वामी जी कहानी बोला था याद है? स्वामी विवेकानंद जब वाराणसी में गए और बंदर उनके पीछे पड़े, याद है कहानी क्या बोले थे? बोलो तो। जी महाराज जी। है? याद नहीं है? अच्छा, उनको मैं फिर रिपीट कर देता हूं। रिपीट करने जैसा है इसलिए कर देता हूं। और मैं भी वाराणसी से हूं, और जहां एक घटना घटी थी वो मैं देखा था, मैंने उस घटना का स्थान देखा था। स्वामी विवेकानंद वाराणसी में आए थे, तब विश्वविख्यात स्वामी जी नहीं बने थे, वंडरिंग परिव्राजक स्वामी बने थे। गांव गांव, तीर्थ तीर्थ में घूमते थे, बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, लोग उनसे मिलते थे। वाराणसी में आए थे। वाराणसी के बंदर बहुत पाजी होते हैं, हमारे आश्रम में भी बहुत उत्पात अभी भी मचाते हैं। तो स्वामी जी वहां गए तो शायद अकेले होंगे ऐसा लगता है कहानी से। बंदर उसके पीछे दौड़े। अभी बंदर पीछे दौड़े तो सामान्य रहता आदमी क्या करता है, वो भी थोड़ा जोर से चलने लगे। स्वामी जी जोर से चलने लगे तो और भी बंदर साथ पिछाने हो गए और भी जोर से चलने लगे। स्वामी जी दौड़ने लगे तो बंदर भी दौड़ने लगे। वहां एक बुजुर्ग सन्यासी बैठा था, तो उन्होंने बोला, ये जानवरों का सामना करो, फेस द ब्रूट। जानवरों का सामना करो। स्वामी जी एकदम, वो तो बल का मूर्तिमंत रूप थे, वो खड़े हो गए। खड़े होकर के बंदरों के सामने देखा, और जब ऐसे बंदरों के सामने खड़े होकर तुम देखो, फिर वो बंदर हो, बाघ हो, सिंह हो, थोड़े समय के लिए तो थम जाएगा। वो थम गए। फिर उनको अटैकिंग स्वामी जी ने पोस्चर लिया, सब बंदर वहां से चले गए। फेस द ब्रूट, ये पहला बात। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। भय को जितना तुम भागेगा, भय एक भ्रांति है, अगर उसको ठीक से समझ लो तो भय है नहीं, कभी कुछ होता ही नहीं और भय लगता। मैं ईटानगर में था और एक महिला मेरे पास में आई, अकेली रहती थी, और वो ट्राइबल एरिया, और ट्राइबल लोग थोड़ा नॉन ट्राइबल को बहुत परेशान करते हैं, और अकेली औरत होने से तो और भी ज्यादा परेशान करते हैं, और कभी परेशान नहीं करने से भी ऐसे ही वो लोग डर के रहते हैं। तो एक बार मेरे पास में, महाराज मुझको बहुत डर लगता है, मैं जब रूम में अकेली होती हूं तो मुझे लगता है मेरा बागान में कोई छुपा है, वहां कोई छुपा है, मेरा खिड़की के पास में कोई है, और मुझे डर लगता है। मुझे एक काम करो, हो तो कोई नहीं है, तुम एक बड़ा दाव, वहां दाव रहता है, उसको लेकर के बाहर में निकलो, बड़ा टॉर्च लाइट हाथ में रखेगा, और सब जगह में घूम के देखो, फेस द ब्रूट। और जब देखेगा कोई होगा तो भाग जाएगा, और नहीं होगा तो तुम्हारा भय चला जाएगा, कुछ नहीं है। कुछ दिन ऐसे किया, तब उनको लगा ये तो मेरी भ्रांति थी, और उसका डर चला गया।
भगवान बुद्ध के पास में भगवान बुद्ध अपने जीवन की बात बताते रहते थे बार बार। उनके जीवन में भय था और भय भूत को कैसे भगाना, वह एक अपना जीवन का प्रसंग उन्होंने बोला था कि जब राजपाट सब छोड़ दिया और जंगल में रहते थे और जंगल में रात में जब ध्यान करते तो देखता है कि कहीं कोई ताली बजा रहा है, कहीं से कैसा विचित्र आवाज आ रहा है, लगता है कहीं पीछे से कोई अटैक करने आ रहा है। तो बुद्ध बहुत डिस्टर्ब रहते थे, ये और भय लगता था कि क्या है। फिर एक बार उठ गए अपने ध्यान से, उठ करके जंगल में गए जहां तालियां बजती थी। बोले भूत ताली बजाते हैं ऐसा वो समझ लिया था। तो देखा ऊपर में जो भूत तो नहीं है मगर कुछ ऐसे पक्षी थे जो रात को पांख फड़फड़ाते थे, और पांख फड़फड़ाने से बड़े बड़े जो पेड़ के पत्ते हैं उसमें लगने से जैसे तालियां बज रही है ऐसा आवाज आता है। जब रियलिटी जानी, डर चला गया। डर तो भ्रांति था, रियलिटी को जानने से भ्रांति चली गई। ऐसे ही दूसरे जगह से जो आवाज आता था वहां ही आ गए। तो कोई ऐसा पक्षी जो भूत के जैसा, न मनुष्य के जैसा, न जानवर के जैसा आवाज करता है, वो रात को कभी कभी आवाज करता है। ऐसा जानने से रियलिटी जानी, भय चला गया। फेस द ब्रूट, और रियलिटी जानो, भय चला जाएगा। मगर सब समय तो भय भ्रांति नहीं होता है, कभी रियल भी सिचुएशन हो सकता है। तब रियल सिचुएशन को फेस करने के लिए तुम्हारे अंदर में शारीरिक बल होना चाहिए, तुम्हारा EQ बलवान होना चाहिए। EQ का पर्पस ही है तुम साहसवान बनो, बलवान बनो, और अपने अंदर में श्रद्धा रखो, दृढ़ता रखो। ये जब अंदर में बल आएगा तब भय अपने आप में डिसअपीयर हो जाएगा। जितना आत्मचिंतन करोगे इतना भय चला जाएगा, क्योंकि जहां आत्मचिंतन है वहां भय नहीं है, और निर्भय हो जाता है, अभय हो जाता है। अभय पाने के लिए सबसे बेस्ट है आत्मचिंतन करना या परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना। और फिर बहुत सामान्य है तो फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ करने लग सकता है, उससे भी बोला आ सकता है। बहुत से उपाय है, मगर भय को तो भगाना है, और भय को भगाना यही UQ का ट्रेनिंग का एक पर्पस है। वो ट्रेनिंग के लिए तो फिर तुमको सिस्टमेटिक उसका ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग में जाने से मन अंदर से बलवान हो जाएगा। बस तो यही प्रश्न है हमारा। ये पावर कम है इसलिए क्लियर रिपीट कर देना होगा। नमस्कार स्वामी जी, my question is how do we identify our strength and weaknesses and conquer it? Identify How do strength and weakness. How do we identify it? Within ourselves. 4 बात बताया था मैं। एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ। Yes. स्ट्रेंथ तो एक टाइप का नहीं है, स्ट्रेंथ के भी डिफरेंट आयाम है, डिफरेंट लेवल है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो तुम समझ ही सकता है, उसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। तुम 5 किलो उठा सको तो तुम्हारा एक लेवल है, तुम 25 किलो उठा सको तो तुम्हारा दूसरा लेवल है, तुम 100 किलो उठा सको तो तुम्हारा और लेवल है। ये तो यू कैन, ये नंबर 1। नंबर 2, तुम कितना भी काम करो और थको नहीं, और थोड़ा सा काम करके थक जाओ तो तुम्हारा फिजिकल पावर ज्यादा नहीं है। स्टेमिना और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने तो एकदम फिजिकल पावर, माने लॉन्ग टाइम तुम हार्ड वर्क किए जाओ और थको नहीं। तो ये कैसे आएगा? अभ्यास से आएगा, एक्सरसाइज से आएगा। बिना अभ्यास तो फिजिकल पावर बढ़ना नहीं है। अच्छा खाना पीना से भी आएगा, पॉजिटिव थिंकिंग से भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और शारीरिक बल बढ़ता। तुम हमेशा नेगेटिव थिंकिंग करते रहो, ईर्ष्या में जलता रहो, स्ट्रेस में डूबा रहो और मन में फ्रस्ट्रेशन आ जाए, ऐसा होने से ऑटोमेटिकली अंदर से नर्वस सिस्टम ऐसा हो जाएगा और तुमको वीक करेगा और बल नहीं रहेगा। तो फिजिकल बल तो बहुत बड़ा है, मगर फिजिकल बल को भी बनाए रखने
के लिए ईक्यू का भी जरूरत होता है। अगर तुम्हारा जीवन में फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, और सब समय स्ट्रेस रहता है, अंदर में जलता रहता है, कोई भी कारण से किसी भी जगह से कोई निष्फलता मिली और वो निष्फलता से फिर निराशा आ गई और अंदर से टूट गया, तो तुम्हारा बलवान शरीर होने पर भी उसमें ज्यादा बल नहीं रहेगा। इसलिए ईक्यू को भी पावर करना है। ईक्यू पावरफुल तो फिजिकल भी पावरफुल, और फिजिकल पावरफुल होने से ईक्यू को पावरफुल करने में सुविधा मिलती। जो एकदम रुग्ण आदमी है, कमजोर आदमी है, जिसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है शरीर का, उसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी ज्यादा नहीं कर सकेगा, ईक्यू भी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर सकेगा। इसलिए पूरे पावरफुल सब डायमेंशन से रहना है। ह्यूमन बीइंग इज नॉट ओनली वन डायमेंशन और वन फैकल्टी। ह्यूमन बीइंग इज ए मल्टी फैकल्टी, मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनिज्म। और वो मल्टी पर्सनल डायमेंशनल मल्टी फैकल्टी ऑर्गेनिज्म को परफेक्ट रखने के लिए सब दिशाओं से, सब आयामों से प्रयत्न करता रहना पड़ रहा है। तब तुम एक परफेक्ट, इम्प्रेसिव, सक्सेसफुल, दूसरों की दृष्टि में और सक्सेसफुल बने। Words. Now I would like to call Secretary of rkmcbsegwalior, Swamiji, to conclude this youth camp. Sorry. ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे. We just have an very interesting sessions conducted by Srimad Swami Vishwatmanand Ji Maharaj, President Ramakrishna Ashram Varanasi, as well as Srimad Swami Veda Purushananda Ji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Jhargram, West Bengal. As the topic indicates, that is the first lecture taken by Srimad Swami Veda Purushananda Ji Maharaj, leading a purposeful and meaningful life. As the word indicates, जीवन तो कोई भी जी लेता है, isn't it? जानवर भी जीता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी जीते हैं, इंसान भी जीता है। और इंसानों में भी कई ऐसे ग्रेडेड लोग हैं कि कोई लोगों को जीवन का जन्म ले लिया, जैसे तैसे अपॉर्चुनिटी पाके या अपना स्वार्थ देख के इधर से उधर एक डाल से दूसरे डाल पे छलांग मारते हुए जीवन कट गया। दूसरे व्यक्ति है कि बड़े लोगों के आदर्श को फॉलो करने लगे। तीसरे व्यक्ति है बड़े लोगों के आदर्शों को आत्मसात करके एक नया ट्रेंड बनाए विभिन्न क्षेत्रों में, सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र में ही नहीं तो सामाजिक क्षेत्र में भी, जैसे कि तुम्हारा व्यापार वाणिज्य हो गया है ना। रिसेंटली आप लोगों से व्हाट्सएप में शेयर किया था मुकेश अंबानी का कोट, वो व्यापार क्षेत्र में स्वामी जी से इंस्पायरेशन लेके व्यापार क्षेत्र में वो एनर्जी को उन्होंने संचारित किया, तो इतने बड़े साम्राज्य के मालिक बन गए। जमशेद जी टाटा स्वामी जी के कांटेक्ट में आए, स्वामी जी ने बताया कि भाई तुम वहां जाके यहाँ की माटी बेचोगे और वहां वो लोग लोहा निकालेंगे और ये करेंगे, हमको वापस बिक्री करेंगे, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट ए educational institute which will help you with the technicians and engineers, and using them you develop that or extract that iron from the soil of India itself and do the business. जमशेद जी टाटा के दिमाग में वो बात रही, उनके दिल को बात छू गई। बाद में उन्होंने यहाँ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है वो बनाया। उसके बाद वहीं नहीं रुके, तो उनके जीते जी तो नहीं हो पाए, लेकिन उनके गुजरने के बाद टाटा स्टील का कारखाना जमशेदपुर में लगा। नरेंद्र मोदी है, सोशल लाइफ में स्वामी जी से इंस्पायरेशन लेके इतने सेवा करते 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 अपने आप को फिट करते गया। जो भी अपॉर्चुनिटी आई उसमें अपने आप को एडजस्ट करते हुए अपने आप को फिट करते करते देश का पंत प्रधान बना।
ये भी एक टाइप का जीवन है। इसीलिए हाउ लीडिंग ए मीनिंगफुल लाइफ and to think upon that is very very much important for every student. स्वामी जी ने और एक बात कहा था कि स्कूल में आना बोरिंग लगता है ना। मोस्ट ऑफ 90% बच्चों का ये एग्जाम्पल है, घर में रहने नहीं देते इसलिए स्कूल में आते, और स्कूल से भगाते इसलिए घर जाते, है ना। लेकिन वो दो टाइम के बीच में तुम्हारे मन में आनंद आता है क्या? टीचर आएगा, नया कुछ पढ़ाएगा। यदि आनंद आता है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और आनंद नहीं आ रहा है तो यू आर ऑन द बेरोजगार के ट्रैक पे आप जा रहे हो। ध्यान में रखो अभी से। इसीलिए एटीट्यूड को सब समय वेरीफाई करना। तो कैसे करोगे? कोई बड़े लोगों से कंपेयर करेंगे तब तो होगा। तो कंपेयर करने के लिए कौन है? स्वामी विवेकानंद इज द बेस्ट, इजंट इट? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया, सब पब्लिक के लिए ही किया, पब्लिक के लिए सोचा, नया भारत को, भारत के पुनरुत्थान के लिए किया। तो भारत का पुनरुत्थान यानी क्या? माटी और ये दरवाजे खिड़कियां क्या? नहीं, तो नई जनरेशन, है ना। स्वामी जी बोले हैं कि आई वॉन्ट ईच ऑफ माई चिल्ड्रन टू बी 100 times ग्रेटर देन आई कुड एवर बी। ईच वन ऑफ यू मस्ट बी ए जायंट, एंड मस्ट, दैट इज माई वर्ड। इफ यू हैव लव, ओबीडियंस एंड perseverance, nothing can hold you back, isn't it? तो इतना सारा स्वामी जी इतने बड़े, ठीक है, कहाँ वो सप्त ऋषि मंडल से आए हुए, और स्वामी जी हमसे चाहते हैं कि हम लोग उनसे भी 100 गुना ज्यादा काम करें, isn't it? इसका मीनिंग लोगे, उसको फील करोगे, एक मीनिंगफुल लाइफ की तरफ अग्रसर होगे। नहीं तो है बेरोजगार की लाइन तो खड़ी ही है, लेकिन हर साल जमा हो रहे रिजेक्टेड, जितना भी ये है सोसाइटी का है, नौजवान सब उधर ये हो रहे। तो रिजेक्टेड लाइफ जीना है क्या? यदि मीनिंगफुल लाइफ जीना है तो उसके लिए सीखना होगा। सीखना है तो सैक्रिफाइस होना, और सैक्रिफाइस होना यानी गोल रेडी होना, जैसे स्वामी जी ने कहा, है ना। अनलेस एंड अनटिल, तुम क्यों आ रहे हो स्कूल में, तुम्हारा एम क्या है? जैसा वेद पुरुषानंद जी महाराज ने बताया, ये गोल यदि आपके मन में सेट नहीं है तो तुमको बोरिंग लगेगा। स्कूल ही नहीं, तुमको स्वर्ग में भी रख दिया तो भी बोरिंग लगेगा, क्योंकि एम ही नहीं है, isn't it? इसलिए स्वामी जी ने एक जगह कहा है ना कि यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, और ये डेस्टिनी मेकिंग शेपिंग में एक मोल्ड स्वामी जी ने दिया है। वो मोल्ड में अपने आप में डालना है, अपने आप को डालना है, और वो मोल्ड क्लास 1 से चालू होता है 12 तक, और उसके बाद में फिर वो सूख जाने के बाद फिर वो काम में आता है। तो अपने आप में मोल्ड, माटी को मोल्ड में डालते हैं तो माटी बोलती है क्या मोल्ड को अपने हमारे हिसाब से एडजस्ट करो? नहीं, वो माटी एडजस्ट होती है। तो आपकी पर्सनैलिटी एडजस्ट करना है, और ये एडजस्ट करने में ही सब दुख का कारण होता है, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू चेंज आवरसेल्फ, है ना। आप कोई देगा तो आपको इस ढंग से लेना है ना। थोड़ा यहाँ थोड़ा ये होना, डिप्रेशन होना वहां, तो वो आप रिटेन कर पाओगे। आप बोलोगे नहीं इधर दो, हमको तो इधर ही देना होगा, आपको देना है दो, नहीं तो मत दो। तो क्या होगा? अगला आदमी दे भी देगा लेकिन रख पाओगे? उसके लिए यही नियम है, तो उसको क्या करें? उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। उसी ढंग से अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए अपने आप को हिला डोला के एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके हिसाब से ये बड़े लोग चेंज नहीं होंगे, उन्होंने जो खुद अपने जीवन में किया है वही आपको शेयर किया है। उन्होंने नहीं किया और आपको बता रहे, ऐसी भी बात नहीं है, isn't it? So द मीनिंगफुल लाइफ यदि जीना है, जैसे कि स्वामी जी ने बताया, ये 2-3 जो ट्रेट्स है इसको पहले एड्रेस करो, और फिर देखो हर दिन गर्मी ठंडी सर्दी स्कूल में नहीं जाएंगे ऐसा भाव ही नहीं आता है, isn't it? और यदि वो आ रहा है तो समझो कि हाँ तुम्हारे जीवन में कुछ तो भी आशा है, अदरवाइज निराशा वाली राइन ऑलरेडी रेडी है। लेकिन वो इतना आसानी से वहां यानी बेरोजगार नहीं बनते हैं। उसके पहले भगवान आपको 12 साल का समय दे रहा है अपने आप को अपग्रेड करने का, और यदि वो नहीं करेंगे तो क्या होगा? कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। यू आर द मेकर ऑफ योर ओन डेस्टिनी।
आप ही बेरोजगार बनोगे तो वो आपके ही कर्मों की वजह से। जब चांस मिला तब ध्यान नहीं दिए, और बाद में अभी सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो चारों तरफ। क्या है, 94% मार्क मिले, फायदा क्या है? इंसान ही ढंग से नहीं है, क्यों देगा तुमको कोई मार्क जॉब? आप वहां स्टाइल मार के वहां इंटरव्यू टेबल पे खड़े रहोगे और वहां सभी क्वेश्चन के आंसर भी दे दोगे, लेकिन आपके अंदर की जो हेकड़ी है ना, वो जो ईगो है, वो झुकने को, चेंज होने को तैयार नहीं। ऐसे बड़े लोगों ने देख लिए, तो आपको क्यों जॉब देंगे वो 94% रहने के बाद भी? वो तो यही सोचेंगे ना, ये इसको तो जॉब दे देंगे, बाद में हम लोग बोलेंगे कि ऐसा करो, तो बोलेंगे नहीं ये तुम्हारा रास्ता गलत है, हम बताते वो सही है, वैसा करो। तो इसके हिसाब से करेंगे और इसको चांस देंगे गलतियां करने का, तब तक तो पूरी कंपनी डुबा देगा ये। तो नहीं भाई, तुम 94% अपने पास ही रखो, हमको नहीं चाहिए। और दूसरा, मीडियोकर जो बच्चा है वो इंटरव्यू को फेस करता है बॉडी लैंग्वेज में, उसका बॉडी लैंग्वेज देख के वो मालूम है, उनको मालूम पड़ता है कि नहीं ये रिसेप्टिव है ना, अपनी हेकड़ी नहीं दिखाएगा ये। हम जो बोलेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोशिश करेगा, ये विभिन्न बहाने नहीं बताएगा। ऐसा 4 मार्क कम है, 60% भी है, तो भी उसको जॉब मिलेगा, ध्यान में रखो, isn't it? और ये रिसेप्टिवनेस लाने के लिए ही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। जैसे एक ने क्वेश्चन किया, स्वामी जी ने भी जवाब दिया कि हाउ फेस द ब्रूट। ये स्वामी जी के जीवन का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है, स्वामी जी भी बहुत उससे सीखे हैं। डर लगना स्वाभाविक है ना, कोई भी नई चीज है, डर लगना स्वाभाविक है। हम लोग माँ के गोद में थे, चलने के लिए माँ आगे चलाती थी, हम लोगों को डर लगता था, माँ के ऊपर भी अविश्वास होता था, वो उंगली पकड़ के खींचती थी तो हम लोग रोते थे, क्यों ये क्यों अन्याय कर रही है मेरे ऊपर करके, isn't it? डर स्वाभाविक है, सब समय रहेगा, लेकिन उसको एड्रेस कैसे करोगे? उससे भाग के एक रास्ता है ना, रन छोड़ दास बनो, भागो। कोई एग्जाम है, बीमार हो गया, नहीं आया, एक्सक्यूज दो। स्कूल में क्यों नहीं आया दिन, नहीं वो थोड़ा काम था, ये था, एक्सक्यूज दो, रन छोड़ दास, isn't it? और दूसरा है फेस। टीचर ने बताया होमवर्क करो, 10 होमवर्क मिल गए, एक ही दिन है, कल करना है, चैलेंज है, तो कैसे करोगे? हाउ यू विल मैनेज योर टाइमिंग? या दूसरा छोड़ दो, बोलोगे कल नहीं हो पाएगा, मैं ये हुआ वो हुआ, है ना। तो लॉस किसका? इसका टीचर का या ऑर्गेनाइजेशन का या स्कूल का? तुम लोगों को तपा रहे हैं भट्टी में और आप भट्टी से उछल के बाहर आ रहे हो, बहुत गर्मी है करके, तो होगा क्या, isn't it? इसलिए स्कूल सिस्टम ऐसी है, ये कोई तुमने या हमने डेवलप की वाली चीज नहीं है, ये निरंतर इवॉल्व हुई चीज है कि बच्चों के लिए हर समय में जवान बच्चे रहेंगे, यंग बच्चे रहेंगे, तो उसको सिखाने के लिए एक सिस्टम ही बना दिया। अभी वो इतने सालों के इवोल्यूशन के बाद हुआ, और तुम उसमें स्कूल सिस्टम में दोष दिखाओगे, तुम्हारे क्या क्या बोलेंगे उसको, औकात है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है? स्कूल सिस्टम इतने साल से ह्यूमैनिटी ने डेवलप किया और तुम उसमें गलतियां दिखाओगे? और यदि दिखाने का आदत है, मतलब तुम कितने महामूर्ख हो, isn't it? ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जब होता है, तब वो अपना ईगो चेंज होने के लिए राजी होता है, और एक बार वो चेंज होने के लिए रेडी हो गया तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग यू कैन अचीव इन योर लाइफ। लेकिन उसके पहले आपको अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बैंक में जाते हैं ना लोन लेने के लिए, तो बैंक क्या बोलती है, ठीक है 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, तुम अपना कितना हिस्सा डालोगे? वो एक्सपेक्ट करता है कि कम से कम 10% 5,000 तो डाले, तो फिर बाकी के 4,95,000 वो बैंक देती है। लेकिन कुछ भी नहीं डालोगे तो बैंक भगा देती है, अपना अपना हिस्सा डालो उसमें करके। तो वैसा ही 90% सोसाइटी आपको दे रहा है, रहने का, खाना पीना मम्मी पापा सब प्रोवाइड कर रहे, कपड़ा प्रोवाइड कर रहे, सोसाइटी ने स्कूल बना दिया, स्कूल में पढ़ाई के लिए अच्छे टीचर दे दिए, ये तो 90% कंट्रीब्यूशन हुआ समाज का। लेकिन 10% तुम्हारा, क्या आप हैप्पीली उसमें ऐड कर रहे हो?
या बस डंडा पड़ेगा करके चुपचाप नाटक कर रहे हो? यदि 10% वो हैप्पीली, इफ यू कैन ऐड इन दैट 10 + 90 मीन्स कंप्लीट 100%, देयर देयर द सक्सेस अराइव्स। इसलिए ये दोनों टॉपिक रखने का उद्देश्य एक है कि भाई हम कहाँ हैं, पहले तो आईना में देखो। हम अपने आप को स्मार्ट समझ रहे, घूम रहे पूरे गांव में, लेकिन हमको मालूम ही नहीं इधर काला, इधर पीला, इधर हरा लगा है ना? और लोग आपको देख के हंस रहे तो तुमको लगता है ये मेरे तरफ देख के क्यों हंस रहा है, मूर्ख है करके। बाद में कहीं आईने का सामना होता तो पता चलता अरे हाँ मेरे चेहरा रंगा हुआ है और वो हंस रहे थे वो बराबर था करके। लेकिन ये 10 साल के बाद पता चलने से फायदा है क्या? तब तक आपका एजुकेशन लाइफ, स्कूलिंग डेज निकल चुका रहेगा। और इसीलिए ये गलतियां ना रहे इसलिए बोला जाता है कि अपना दिमाग नहीं चलाओ, सिस्टम जो है उसको फॉलो करो, आंख बंद के फॉलो करो, आंख बंद करके फॉलो करो। तो है कि नहीं बड़े लोगों की बात में दम? आप उसको चेक करोगे, ये करोगे, तब तक तो 10 साल निकल जाएंगे। इसलिए ये चेक किया हुआ ही है सिस्टम, इसको और चेक करने में अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपको तो काम है सिर्फ फॉलो करना है, श्रद्धा रखना है, विश्वास रखना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करना है तो डाउट करोगे तो कैसे होगा? Isn't it? ये डाउट करके रिफाइंड होके ये सिस्टम आया है। और यदि डुप्लीकेट सिस्टम रहने से अभी तक चलना था क्या? डुप्लीकेट चीज मार्केट में चलती है क्या? नहीं। ये युगानुयुग, सत्य युग, द्वापर युग, कली युग, सुवर्ण युग, सभी में एजुकेशन सिस्टम है, ध्यान में रखो। तो इसके बारे में और क्यों चेक करना है, क्यों अपने आप दिमाग लगाना है? ये साइड में कर दोगे तो ट्रिमेंडस एनर्जी एज वेल एज टाइम विल बी सेव्ड। और बाद में तुम्हारे टीचर ने बोल दिया कल होमवर्क करो, जी सर, तो इमीडिएटली होमवर्क करने की आदत होगी, क्योंकि उससे आपका प्रगति है। उससे नहीं करोगे तो टीचर का कोई घाटा नहीं है, वो तो सिस्टम तो आपको दे ही रहा है, होमवर्क करो, ये करो, वो करो, फिर वो दिन गया होमवर्क करो, ये करो, वो करो, सिस्टम तो दे ही रहा। लेकिन आप उसका कितना रिस्पेक्ट करते हैं उसके ऊपर सोसाइटी भविष्य में तुमको रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करेगी। इस ढंग से आप इसको रिलेट करोगे तो फिर मीनिंग, फिर ऐसे जंगली चोर उचक्केबाज जीवन जीना है कि एक मीनिंगफुल, कि तुम्हारे एग्जिस्टेंस से 4-10 लोगों के आंसू पोंछा जाए, ऐसी जीवन जीना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो करने की तैयारी है क्या? ये सब क्वेश्चन अपने आप को जब खाली समय होता है तब पूछना है, और तब ये क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर से, भगवान तो आप में अंदर में भी है, भगवान तो वही बोलेंगे नहीं करना है बराबर है। तो फिर अंदर से यदि आपका भगवान बोलता है अभी क्या, किसके ओनर्स लाइज अपॉन योरसेल्फ, कैसे? अंदर में से तो बोलना होमवर्क करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कर रहे हो क्या? तुम्हारा बॉडी माइंड बैठने को तैयार है क्या? टाइम डिवोट कर रहे हो क्या? या एग्जाम करने के समय एक्सक्यूज, या होमवर्क करने के समय एक्सक्यूज, नहीं नींद आ रही है सोता हूं, तो जाओ सो, तुम्हारा नसीब सो आएगा। लेकिन नींद आने के बावजूद भी नहीं, हमको दिया है टास्क, हम आज ही पूरा करेंगे, और बिल्कुल यानी सिर उठा के टीचर को फेस करेंगे। ये एक टाइप का स्टूडेंट है। और दूसरा जाता है, टीचर ने पूछा, टेढ़ा मेढ़ा खड़ा रह के, है ना, क्या हुआ, एग्जाम ये किया, होमवर्क या नहीं किया, क्यों नहीं, फलाना था। यानी एकदम झूठ इतना बेशर्मी से बोलते हैं, और ऐसे बेशर्मी से जवाब देने वालों के का नसीब में भगवान देगा अच्छे दिन? कभी नहीं देगा। इसलिए फर्स्टली योर हार्ट शुड बी सेंसिबल। हार्ट को यदि सेंसिटिव नहीं है तो दिमाग कोई काम का नहीं। यू शुड फील फॉर अदर्स, इजंट इट? और ये अपने आप में अपग्रेड करते समय माँ का वो स्टेटमेंट काम में, सो सहन करो, सहन करो, सहन करो, इजंट इट? नहीं तो दूसरा एक भी है, इतना सारा एग्जाम यानी होमवर्क टीचर दे देता है, रिएक्शन देने को तो कोई फुकट का पैसा तो लगता नहीं है कि नहीं, बोलने को कुछ नहीं, लेकिन वो ज्यादा तुम पे प्रेशर देके तुम्हारे कंधे और मजबूत कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं सोचना?
isn't it? जो ऐसा सोचते हैं वही आगे जाते हैं, और इसीलिए 90% सोसाइटी में से 2-3% ही सक्सेसफुल लीडिंग लाइफ लीड करते हैं। वो एक एग्जाम्पल है सुब्रतो बागची का, तो वो उसका किताब पढ़ोगे, वो कहा कंधमाल की कंदहार कुछ तो भी जगह है उड़ीसा में, वहां का लड़का बीएससी किया, एजुकेशन भी इंजीनियरिंग वगैरह कोई डिग्री नहीं, लेकिन सिंसियरिटी के भरोसे पे माइंड ट्रीज नाम का एक आईटी कंपनी है, दैट इज द 4th लीडिंग कंपनी, अभी मर्ज हो गया एलएनटी में। वो कंपनी एस्टेब्लिश करने के फाउंडर मेंबर्स जो थे उसमें ये था लड़का बीएससी वाला, सिंपल। अभी आप बोलोगे कि एजुकेशन ही सब कुछ है, तो इसके पास तो नहीं था, तो ये कहां तक टॉप पे गया? उसका राज ये था कि जो भी काम आता था वो बड़े अपना ही घर का काम है इस हिसाब से करता था, और उसके कारण उसको क्रेडिबिलिटी बढ़ती गई, प्रमोशन मिलते गया, डिसीजन मेकिंग तक पहुंचा दिया। अजीम प्रेम जी के साथ काम करता था वो, तो अजीम प्रेम जी उसको बहुत बहुत काम देते थे, बाकी लोगों को भी देता था लेकिन इनको ज्यादा देते थे। एक बार ये चिढ़ के बोला कि मुझे ही दिखते हो क्या, मुझे ही क्यों देते हो काम, 100% देने के बाद भी आप हमारे ऊपर ही काम का बोझ डालते हैं। तब उन्होंने कहा था, unless and until I give 150% assignment to you, without that how you can achieve the 100%? यानी 150% तुम्हारे ऊपर बोझ डालने के बाद उसमें कुछ गलतियां की वजह से, कुछ कारण की वजह से वो रिजेक्ट होते 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 सक्सेस रेट आपका 100% तक आएगा। कभी भी ध्यान में रखो, बड़े लोग आप पे काम का बोझ डालते हैं, आलस करना है, बेरोजगार की लाइन खड़ी है, और आलस न करते हुए उसको जॉयफुली हेल्प करना है, तो तुम्हारा अपॉर्चुनिटी वो सुब्रतो बागची टाइप बीएससी लड़का आज वो फाउंडर मेंबर बना है ना। अभी उड़ीसा में तुम गूगल में सर्च करना, उड़ीसा के स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का हेड है, और अपने जेब से उसने 300 करोड़ रुपए दिया है भुवनेश्वर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए। बताओ। सो एजुकेशन के ऊपर नहीं रहो पूरा निर्भर, हाउ यू आर डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी, हाउ यू मैंने केयरफुल यू आर अबाउट अदर्स फीलिंग, डू यू रिस्पेक्ट अदर्स फीलिंग, अदर्स फीलिंग मीन्स सब आ गए, सोसाइटी आ गई, टीचर आ गए, मम्मी पापा आ गए, सब आ गए, और यदि उनको खुश करने के लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार है क्या, आपको जरूरत नहीं डॉक्टर इंजीनियर बनने का, लेकिन समाज को जरूरत है, तो चलो भाई मैं एक बनता हूं और समाज को हेल्प करूंगा। मेरी हॉबी क्या है, तो स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में नाम निकालो देश का, या कोई भी फील्ड हो। इस हिसाब से यदि आप सक्सेस चाहिए तो फीलिंग फीलिंग एंड फीलिंग, दिमाग बराबर दौड़ता है उसके बाद। अब पढ़ाई करने का दिल हुआ तो दिमाग दौड़ेगा, पढ़ाई करने का दिल ही नहीं होगा तो दिमाग रह के फायदा क्या, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, यानी अनयूज्ड चाकू के माफिक, उसके ऊपर रस्ट लग रहा है, जंग चढ़ रहा है, ये चढ़ रहा है, वो चढ़ रहा है, और जब जरूरत है तो काटने के कोई काम का नहीं। ऐसी पर्सनैलिटी बनाना है नहीं, तो फिर वो चाकू को डेली धार लगाना होता है, काम रहे या नहीं रहे। वैसे इंटेलिजेंस बुद्धि को भी डेली धार लगाना है, काम रहे या नहीं रहे। तुम लोग एग्जाम के 8 दिन पहले धार लगाते हो, कहां से सक्सेस आएगा? इजंट इट? इस ढंग से अपने आप को सब समय, इसीलिए एकांत प्रियता, श्री रामकृष्ण बोले हैं कि दिन में कुछ एक समय रखना है वो इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सुबह से रात तक मैं जो किया वो ठीक किया है क्या, तो भगवान तो है ही अंदर, तो वो बोलेगे हाँ यहां तुमने फाकी मारी, यहां तुमने झूठ एक का सहारा लिया, यहां तुमने गलत एक्सक्यूज दिया, नेक्स्ट डे उसको वो दरी पाटने की कोशिश करो। इस ढंग से जब चलोगे तब कहीं रियल पर्सनैलिटी आएगी। और जैसे स्वामी जी ने बताया, वो जो भेड़ का जो शेर जो अपने आप को भेड़ समझता था, उसको पता चलेगा कि आई एम ऑल पावरफुल, ऑल द स्ट्रेंथ आर विद इन आवर सेल्फ। अंडरस्टूड? समझ में आया सभी को? यहां स्वामी जी को इतना दूर से बुला के तुम्हारे सामने बात करवाने के लिए क्या प्रयोजन क्या है? टू मेक यू फीलिंगफुल स्टूडेंट,
who have a tender heart, who can feel for others. और एक बार पता चल गया, फीलिंग आ गया, nothing can stop you. That is the success mantra. So I hope this session will be successful and inspire you in the coming days, in future, and make you such a strong personality so that the society is waiting for the good leaders in almost all the walks of life. So by being a good person, sensible person, intelligent person, smart person, serving attitude person, you will show an example in front of the future society as well as the present other students. तुमको तुम्हारा बात करना, चलना, ये सब एक्टिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा. एक्टिंग करने में भी फायदा है. एक्टिंग करते 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 वो वैसा ही बन जाता है ना. मम्मी ने अपने को ओ आ ई लिखाया, तो अपने को कौन सा, अपन कौन से साइंटिस्ट थे, अपने को अकल थी क्या? उसका क्या यूज होने वाला है? अपन भी एक्टिंग की है, ओ बोल रही है लिख दो, तो छुट्टी हो जाती है, तो लिखो. एक्टिंग ही तो की है ना, लेकिन वो एक्टिंग का फायदा हो रहा है ना. उसी ढंग से एक गुड पर्सनालिटी प्रेजेंट करने के लिए स्कूल में एक्टिंग करो. वो एक्टिंग ही आपको धीरे धीरे और आनंद आएगा और इंस्पायरेशन आएगा और चले ऐसा. और ये मैकेनिज्म तुम्हारे दिमाग में इतना फिट कर दो, तुम्हारे न्यूरॉन्स तक पहुंचा दो, डीएनए तक पहुंचा दो कि ये क्या बोलेंगे, ये प्रोटोटाइप या ये प्रोग्रामिंग है, ये जन्म जन्मांतर में आपको हेल्प हो. इजंट इट? यही जन्म नहीं, और भी जन्म आते हैं. आपका जन्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ये प्रोग्रामिंग इवोक होना चाहिए और वो लाइफ में भी चले. ऐसे जन्म जन्मांतर में आप में इंप्रूवमेंट होगा. लेकिन जन्म जन्मांतर भी रुकने की जरूरत नहीं. ठाकुर मां स्वामी जी को फॉलो करेंगे तो यही जन्म में क्यों, यही साल में क्यों, यही महीने में क्यों, ये आज के दिन में भी उसका इमीडिएटली इफेक्ट या बेनिफिट आपको देखने को मिल सकता है. आई होप द स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस youth camp is successful, and I will we will keep on watching you, what changes you are bringing within yourself. और ध्यान में रखो, इसको मजाक में नहीं लो, ठीक है? मिर्चा मजाक में खाओगे, यहाँ क्या होता है मैं खा रहा हूं करके, और बाद में खाने के बाद अरे बाप रे बहुत पानी 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 कर लाओ करके, तब कहाँ जाओगे? जब तक हाथ में पानी आएगा तब तक तो तुमको तो उसका झेलना पड़ेगा. Isn't it? तो वो बाद में बेरोजगार के लाइन में पहुंच गए, अरे बाप रे गलती हो गई, गलती, नहीं अभी मैं ठीक से होऊंगा, बोलने से लाभ क्या? Isn't it? जब क्या वो एक हिंदी में कहावत है ना, चिड़िया चुप गई खेत वगैरह, ऐसा कुछ है ना. अपॉर्चुनिटी निकल गया, टाइम निकल गया, बाद में सॉरी बोलने से क्या फायदा? और फिर पता चलता है कि जीवन में कितना बड़ा ब्लंडर किया हमने. ये सब नहीं होना चाहिए. तो सबसे सिंपल है कि श्रद्धा, विश्वास. हमारे टीचर, हमारे स्वामी जी लोग, हमारे बड़े लोग, हमारे मम्मी पापा जब बोलते हैं नहीं करो, तो फालतू में नखरे दिखाने की जरूरत नहीं. एक्सेप्ट करो, नहीं ये हमारे लिए अच्छा है इसलिए मम्मी पापा ने मत जाओ बोला है, खत्म. उसको मन में रख के उसके ऊपर ही 2, 4, 10 दिन, हाँ ठीक है, बड़े होने के बाद पिताजी को दिखाएगा हम. क्या दिखाओगे भाई? जाने नहीं दिया इसलिए. ये मूर्खता पूर्ण विचार है. और ये इसकी जो सीरीज है, प्रोसेस है, इसको टोटली कट करो. इसको पूरा जो सप्लाई होता है, पावर सप्लाई, उसको बंद कर दो और रहने दो सर्किट, ठीक है? इस हिसाब से नहीं करोगे तो बेरोजगार की लाइन तो रेडी है. बेरोजगार की लाइन को बचना है तो ये सब सैक्रिफाइस करना होगा. देयर इज नो अदर वे. ठीक है? आई होप यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी सीरियसली. एंड ऑन द लास्ट, at the end of this session, I would like to sincerely thank to both the swamis who are very, very busy, but still they have accepted to come over here and encourage our student, teachers, devotees, and they have accepted our minimum hospitality, though
The conditions over here are far less comparable to the other centers. We are just growing, Swamiji. If anything, any shortcoming is there, please forgive us and just bless us for the future of this institution as well as future of our student, teachers and deputy. Namaskar. Now, one thing is that we have our youth forum WhatsApp group or announcement, not WhatsApp group. Those students who are there, they need not have to give their name and then mobile number as well as email ID. But those who wish to add themselves in that announcement group, please, their notebook is kept over there. Please write down your details over there so that we can add you. And another is email also, Ramakrishna Mission G, like Google group is there. There also your email ID will be added. So whatever developments as well as new future events information is there, it will be easy for us to share it with you. And another thing you have to do is that not only knowing the things through WhatsApp group or that Google group, you have to do one more thing. You have to spread it among your groups so that who knows which student may get the click and he will be the helpful for the nation. Isliye, after reading, you should spread it among the society. That is another thing. Thirdly, now both the Swamijis will be sitting over here. You just come one by one, take their blessings, and then go proceed ahead. Outside, some bananas are kept over there. Take that banana and then go home straightly. Nothing here and there. No phone we should expect from your parents कि बच्चा गया था स्कूल में प्रोग्राम के लिए अभी तक पहुंचा नहीं. ऐसा नहीं होना चाहिए. पहले घर जाओ, बाद में कहीं जाना है जाओ. ठीक है? थैंक यू.